नवंबर 1947 के दौरान भारतीय अफवाज और हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों जम्मू में शहीद होने वाले कश्मीरियों की याद में कश्मीर ग्लोबल कैंपेन के ज़ेर एहतमाम लूटन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं, साबिक मेयर्स, कौंसलर्स और ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के आगाज में खूबसूरत कलाम पेश किया गया। शुरा ने योम शुहदाए जम्मू के मौके पर 2 लाख से जायद कश्मीरी मर्द, औरतों और बच्चों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया और इस अलमनाक सानहे को तारीख का एक स्याह बाब करार दिया। मुकर्रीन ने कहा कि भारतीय हुकूमत खसूसन मोदी सरकार कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए जालमाना इक़दामात कर रही है, जिसके खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुकर्रीन ने जोर दिया कि ओवरसीज कश्मीरी अपने सियासी व नजरियाती इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर कश्मीर की आज़ादी के लिए मुत्तहिद हो जाएं। तकरीब में भारतीय जेलों में कैद कश्मीरी रहनुमाओं की कुर्बानियों को भी हिराज तहसीन पेश किया गया और इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। दुनिया के हालात चेंज हो चुके हैं, क्योंकि आप सब ने देखा गजा के अंदर जो मास्कर हुआ वो आप सब ने देखा, लेकिन इंटरनेशनल लॉ की जो है वो खिलाफवर्जी हुई, वो भी आपने देखा। जो सुपर पावर जिसके पास हम जाके कहते हैं कि जी हमें कश्मीर आज़ाद करके दें, उसने एक तरफा इसराइल को कहा जितना भी आप मार सकते हैं मुसलमानों को मारें। तो ये हमारी बड़ी तकलीफ हुई है मुसलमानों, दुनिया के मुसलमानों को। और कोई भी दुनिया का जो इस्लामी मुल्क है उसके सरबराह को इतनी जुर्रत नहीं थी कि कहे कि एटलीस्ट ये इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी हुई है, ये तो बंद करें। इतनी बात नहीं कह सकते। ये इससे बड़ी बदकिस्मती मुसलमानों को के इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। About 5 days before the Razakar, the Razakar, everybody knows the Razakar that came from the Ori side. It's 5 days before, and 9 days before the Indian army landed in Srinagar. So it's much before that. It is quoted in Frontline, 27th of September 2008. Frontline is a very renowned newspaper in India. Frontline magazine comes out. So it after Punch, Rajouri, Riyasi, they were all the majorities. ریاسی میں تو زیادہ ہی تھا، اور ڈسٹرکٹ جو جموں میں تھا اس میں آپ کا ایٹ لیسٹ 46.16% آپ کی جو ہے مسلمان تھے. It was in a minority, 46.16%, but it came down nearly to insignificant. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، ہمارا جو ملک ہے، وہ جب تک پوری مکمل سپورٹ نہیں کرے گا کشمیر کی آزادی کے لیے، اس وقت تک آزادی حاصل نہیں ہو سکتی. چاہے جو بھی گورنمنٹ ہو، جو بھی آئے، ان کو کشمیر کی آزادی کے لیے پوری مکمل طور پر سپورٹ کرنی چاہیے. کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ فوج دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی جو فوج ہے وہ نمبر 1 ہے جی پوری دنیا میں، لیکن اس حوالے سے دیکھا جائے کہ کشمیر کی آزادی میں اس کا کیا نمبر ہے. وہ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے مسئلہ حل ہو، اور یہ مسئلہ حل بھی ہونا چاہیے. اب نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ میں چھوٹا سا تھا تو کشمیر کی آزادی کے نعرے لگاتے تھے، اسکول میں بھی، کالجز میں بھی، لیکن ہم شاید چلے جائیں گے، ہمارے بچے بھی شاید چلے جائیں گے، تو یہی نعرے لگاتے رہیں گے. کب کشمیر آزاد ہوگا؟ یہ سب کی آواز ہے، کشمیر میں بھائیوں سب کی آواز ہے. اس کے اوپر سب کو ایک عمل اختیار کرنا چاہیے. انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں ان سے پوری ریکویسٹ کرنی چاہیے، ان سے درخواست کرنی چاہیے. اس مسئلے کو اتنا اجاگر کرنا چاہیے کہ جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں اجاگر ہوا. جب تک اس مسئلے کا کوئی حل، پائیدار حل نہیں نکلے گا، اس وقت تک میرے خیال میں کشمیر کا مسئلہ 70-80 سال سے حل نہیں ہو سکا. اتنا عرصہ شاید اور لگ جائے، لیکن ہمارے حوصلے بلند ہیں، انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. 1947 6 نومبر میں جتنی جنوسائیڈ ہوئی تھی، اس کو میں آج کے اس اجلاس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن میں اس کو جو ہے جنوسائیڈ ڈے کے طور پر ریکگنائز کیا جائے. دیکھیں آپ، جوش کمیونٹی کے ساتھ جب ایسا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اس ڈے کو ہولوکاسٹ کے طور پر بنایا، اور آج آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں ہولوکاسٹ کا نام لیں تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا. لیکن بدقسمتی سے کشمیر کے بارے میں جو ہماری جتنی بھی جو ہے کہ شہداء جو ہے جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، ہم ان کو اتنا جو ہے ریکگنائز نہیں کرا سکے، اور نہ ہی ہماری جو ینگ جنریشن ہے
उस तक हम जो है ये जितनी भी जो हमारे कुर्बानी कश्मीरियों ने दी है उनको नई जनरेशन तक जो है नहीं पहुंचा सके। मैं समझता हूं कि हम सब का ये जो है कि ये होनी चाहिए कि हम सब जो है मिलजुल कर जो है जो ये शुदाए कश्मीर हैं इनके जो कुर्बानियाँ हैं उनको नई जनरेशन तक जो है मुंतकिल करना चाहिए। पाकिस्तान हमारा भाई पाकिस्तान बड़ा भाई पाकिस्तान है, सब बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जब तुम मजबूत नहीं होगा उस वक्त तक हम कश्मीर अपना आज़ाद नहीं हो सकता। हमारे नौजवानों को आप यहाँ पर लाएं, नौजवानों का बहुत हिस्सा है कि जब तक हमारे नौजवान बच्चे यहाँ पर आगे नहीं होंगे, वो कौशल नहीं बनेंगे, और चलना बहुत मुश्किल है। अगर हम सारे इकट्ठे होकर हम एक टीम बनाएं, कुछ मीडिया के साथ जो लोग हैं उनको साथ मिलाएं और एक टीम ऐसी हो जो वक्तन फ़क्तन इस मसले को, इसकी बैकग्राउंड को जो वो हाईलाइट करे। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, हमारे जो बुज़ुर्गों ने काम किया है ना, जिसमें मीरवाज उमर यूसुफ साहब, अली गिलानी साहब हैं, मुजाहिद अव्वल हैं, सरदार रहीम साहब, इस तरह के जो लोगों ने काम किए हैं ना, जो कुछ उनके बयानात, जो कुछ उन्होंने हमें कुछ बताया कि ये काम करना है, किस तरह करना है, क्यों करना है, वो चीज़ें मैं समझता हूँ हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अब जब कश्मीर की बात हो तो हम सब एक प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। जैसे आपने जिक्र किया कि तमाम पार्टियों से बालादस्त होकर हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए कि कश्मीर की बात हो रही है, चलो चलते हैं जी। और इस पर इनविटेशन की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी उस वक्त तक हम कोई भी टारगेट हमें अचीव नहीं कर सकेंगे। शुदाए जम्मू को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया। आज़ादी जो है ये आराम से मेरा ख्याल है कहीं पे अगर अब हिस्ट्री में देखा जाए तो आज़ादी जदोजहद के बाद ही मिलती है। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर का जो इशू है इसको हम ज़िंदा रखें और किसी मौसर जगह पे हमारी आवाज़ पहुँचे, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम एक नेटवर्किंग करें, स्पेशली यहाँ के जो यंगस्टर हैं उनको इंगेज करें। और ये नहीं है कि हम जिस भी प्रोग्राम में जाएं हमें वही शनासा चेहरे मिलें। यहाँ पे अगली बार जब हम हों तो नए चेहरे हमें यहाँ पे मिलने चाहिए। और बीइंग अ यूथ काउंसलर, जो भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी मेरी जो जहाँ पे भी इंशाल्लाह मुझे पहले भी जहाँ कभी मौका मिला तो मैंने ज़रूर बात की है और आगे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। कितनी जंगें हो चुकी हैं जफर साहब, मेरे इलाके के लोग शहीद हुए हैं, मेरे जो हमारे फैमिली के बंदे वो निशाने आते हैं 1947 की जंग में। हमारा किरदार है आज़ादी में, लेकिन ना आज़ाद कश्मीर के किसी नुमाइंदे को बोला जाता है। ये जो पार्टी से आपने बात की, पार्टियों का इन्फ्लुएंस है। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात से करूंगा कि वो रियासती जमात थी जिसको क्यों तोड़ा गया, क्या जुर्म किया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आज़ाद कश्मीर के अंदर। पूरी जो रियासत है उसके वहां चलता है जो सैयद अली गिलानी थे, हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है, ये ना वजह ये भी था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 19 जुलाई को हालांकि पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी जफर साहब। आज इसको तोड़ने का सिर्फ ये जो तजर्बा आज़ाद कश्मीर के अंदर किया जा रहा है, जो एक्शन कमेटी बनी, मैं अफसोस से ये कहूंगा मैं भी उनके साथ हूँ। यहाँ पर हम चार दौड़े हाई कमीशन में और इंडिया को मौका दिया। कश्मीर की आज़ादी के लिए कितने बंदे गए हाई कमीशन में? हमें पाकिस्तान की हुकूमतों से इख्तलाफ हो सकता है, पाकिस्तान के सियासतदानों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान की जो स्टेट है उससे, अफवाज से हमारी कोई इख्तलाफ नहीं है। इसलिए एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि कश्मीरियों का जो निगहबान है इंटरनेशनल दुनिया में वो पाकिस्तान है। वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमारी बात करता है, OIC में भी हमारी बात करता है, दुनिया के हर फोरम पे हमारी वो बात करता है। और बात क्या करता है, वो कहता है हक़ खुल राबित, कश्मीरियों को उनके लिए सेल्फ डिटरमिनेशन दी जाए। कभी भी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम पर किसी मौके पर यह क्लेम नहीं किया कि कश्मीर उसकी शहरग है, वो कश्मीर उसका हिस्सा है, बल्कि आज तक उसने कभी अपने मैप में कश्मीर को शो नहीं किया। हमें एक तो इस बात का सारे सियासी कारकुनों को, तमाम सियासी जमातों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान से हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। सियासतदानों से जिस तरह हमारी कमी पेशी हो सकती है, हुकूमतों से कमी पेशी हो सकती है, लेकिन हमारा जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, ताकि हमारा मसला कश्मीर को अहमियत मिले। 6 नवंबर को जब लोगों को कहा गया कि आपने पाकिस्तान के साथ जाना है, लोगों ने कहा जी पाकिस्तान के साथ आप जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उनको ये कहा गया कि ठीक है, अब ट्रेनें तैयार की गई, तो वहाँ उन लोगों, बच्चों को, औरतों को, सबको ट्रेनों में भरा गया। और जब वो रास्ते में हिंदू और सिख वहाँ पर वो जो खड़े थे, मौजूद थे लोग,
انہوں نے عورتوں اور بچوں کا پر وہ ظلم کیا جس کی مثال نہیں ملتی. میرے خیال میں اس وقت سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا. تو ایک بہت بڑی قربانی ہوئی, قربانی دی گئی. اس کے بعد تحریک آزادی کشمیر کو, آزاد کشمیر کے جن لوگوں نے زندہ رکھا, ایک سازش کے تحت آج ان لوگوں کو گالی دلوائی جا رہی ہے. لیکن کشمیر فرسٹ کیوں نہیں ہے؟ شہداء, یوم شہداء, جموں کے شہداء کیوں نہیں ہے سب سے پہلے؟ کشمیر کی شہداء کیوں نہیں ہے سب سے پہلے؟ کیوں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر ہزاروں کی تعداد میں کشمیر کے لوگ کیوں نہیں جاتے؟ اگر آپ کی پارٹی کا کوئی جلسہ ہو تو وہاں پر 1000 آدمی جمع ہو سکتا ہے, تو کشمیر کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر آپ کہتے ہیں جی, تو پھر جو جماعت جو کشمیر کا نام لے رہی تھی اس کو ایک سازش کے تحت دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے, اور ایک سازش کے ساتھ ان کو گالی دلوائی جا رہی ہے. کہ ہمارا ایک ٹی وی چینل ہو, جیسے ڈاکومنٹری, جیسے کہ ہولوکوسٹ کی یا ایسی ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں, تو کشمیر میں بے شمار ایسی ٹریجڈیز ہو گئی ہیں. ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمارا ایک انگلش چینل ہونا چاہیے جس میں کشمیری لوگ جو بزنس کرتے ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں, اسپانسر کریں, تاکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے نوجوان وہ اسی طرح انگیج ہو سکتے ہیں جب وہ انہی کی زبان میں وہ یہ باتیں بتائی جائیں. کہ دنیا میں ایک جو سب سے لمبی تاریخ ہے وہ کشمیریوں کی مظلومیت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں جہاں پہ بھی ہو سکے, جس پلیٹ فارم پہ بھی ہو سکے, جس حیثیت سے بھی ہمیں ہو سکے, اس کو ہمیں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. کہ جب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تھی تو ایک مائی جو ہے وہ سود کی اٹی لے کے آ گئی تھی کہ میرے پاس یہی ہے, تو وہ انہوں نے اپنا نام لکھوایا تھا. اسی طرح ہم اپنا نام لکھوا رہے ہیں. ہم نے کوئی یہاں پہ بیٹھ کے آزاد نہیں کروا دینا, لیکن ہم اللہ کے سامنے اپنی حاضری لگوا رہے ہیں. تو ظفر بھائی نے بھی بولا اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو ہے نا ہمارا سب جماعتوں کا گلدستہ ہے. مسلم کانفرنس وہ جماعت ہے جس پہ آپ کو کرپشن ثابت نہیں کر سکتے الحمدللہ. میں وہاں پہ گیا ہوں جہاں پہ مجاہد اول سردار صاحب کا گھر ہے, اور میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب بھی گئے ہوں گے وہاں پہ. تو ان کا وہی کچے 3 کمرے تھے, تو اسی میں ایک کمرہ میں ان کی جو لائبریری تھی اسی میں وہ سوتے ہیں. ویسے جموں کشمیر کے جو واسی ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے ہوشیار, کلیور اور پولیٹیکلی جو ہے نا یہ ہمیشہ جہاں بھی تھے یہ نظر آتے رہے ہیں. اگر جموں ماسکر کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہمارے پاس آیت اللہ خمینی جیسے بندے جنہوں نے دنیا میں ایک بہت بڑے انقلاب کو لیڈ کیا, وہ بھی کشمیری ہیں. علامہ اقبال صاحب, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, جو پوری دنیا ان کو اپنا شاعر مانتی ہے, ان کو تھنکر مانتی ہے, اور دنیا کے اگر بہترین دماغ اگر ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس میں سر علامہ اقبال صاحب کا نام اوپر آتا ہے. کہ کشمیر جو کبھی جنت نظیر تھی اور ابھی بھی جنت نظیر ہے, اس کے ساتھ تسلسل کے ساتھ پچھلے کئی 100 سالوں سے, اسپیشلی 1931 سے لے کے آج تک مسلسل اس طرح کی ٹریجڈیز ہوتی رہی ہیں. اور یہ جموں کا جو واقعہ ہے یہ ابھی ہم نے دیکھی ہے, سلائڈ پہ دیکھی ہے, یہ ویڈیو دیکھی ہے ہم نے. ظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کشمیر گلوبل کیمپین کے جو اسٹیج سے ہمیں یہ ویڈیو دکھائی ہے. اس پر تاریخ میں پاکستان کی طرف سے یا ہمارے کشمیری بھائیوں کی طرف سے بھی جو رائٹرز ہیں وہ زیادہ نہیں لکھتے نہ بولتے ہیں اس پہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ اس سے بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ تاریخ کا یہ اہم باب جو جس میں 100% یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنی بڑی ٹریجڈی, اتنا بڑا ماسکر اور اتنا بڑا قتل عام کسی قوم کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو وہ دنیا کے سامنے ہر صورت میں اچھے طریقے سے اس طریقے سے آنا چاہیے کہ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے اور لوگ اس کے ہمدردی بھی کریں قوم کے ساتھ. یہ جو ہم جو ہے نا یہاں یو کے میں ایٹ لیسٹ جی زوری والی سیاست نہ کریں اور صحیح کوز جو ہے کشمیر پر کریں یونائٹڈ ہو کر, کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک تاریخ بنا نہ سکیں. If we look at Indian subcontinent, and as far as we all are concerned, we've read the history. The global map has changed over centuries, and I think there's a narrative that Indian government is trying to build that Muslims were invaders, and India is a land of Hindus, and including Kashmiris, they're invaders. We can say the same thing about Europe and many other, and even Americans. You know, at some stage, someone has invaded someone. However, Kashmiris have thousands and thousands of years of history, and they have contributed positively within Indian subcontinent, whether it comes to culture, economy, science,
philosophy. In fact, we talk about China and China's Belt and Road Initiative. This is what Muslims gave to the world when Muslim ruled, when there was a Muslim empire. That's why India became one of the largest economies in the world. That's what Muslims gave. Muslims didn't take from Indian subcontinent. Muslims actually gave, they settled, they integrated, they married. So they became part and parcel of that very fabric society. And then obviously, when we look at the British, even under the British, there were 562 princely states. There was never a unified India to what, Modi and his cronies are trying to narrate, that, it was one India and that's it, and that's the way forward. No, Kashmiris had their own identity. It was a separate independent state, and that's what majority of the Kashmiris want. And for those communities and who progress, never forget the history, including the dead ones. मकबूजा कश्मीर में जो जम्मू में 1947 में लगभग जो एस्टिमेटेड रिपोर्टिंग्स हैं 5 लाख तक शहीद किए गए और 7.5 लाख तक जो मुसलमान थे उनको माइग्रेट करना पड़ा, चाहे वो सियालकोट गए, वो लाहौर गए, वो कराची गए, यानी बड़ी एक डिस्प्लेसमेंट उस वक्त हुई मुसलमानों की, और ये इसकी रिपोर्ट नहीं की जा रही है। आज वो दिन है जब कश्मीर कैंपेन ग्लोबल, जो कि मकबूजा कश्मीर की, और यहाँ पर एनजीओ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर इशफाक साहब जिनका भी आपने सुना, ये हम इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि न कि सिर्फ किसी पार्टी के साथ, बल्कि जितने भी हमारे यहाँ पर अपने आज़ाद कश्मीर के या पाकिस्तान के या जितनी भी पीस लविंग कम्युनिटी, उनके साथ मिलजुल कर हम इस तरह के प्रोग्राम्स करें जिसमें लोगों तक हम मकबूजा कश्मीरियों की आवाज़ पहुँचाएं। और आज के दिन हम उन शोहदाओं को याद करें जिन्होंने अपनी जानें, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। यहाँ पर आप देख लें पोस्टर्स को, बिल्कुल जो वहाँ पर आई विटनेस, जो कि कुछ सर्वाइवर्स थे, उनकी आई विटनेस स्टेटमेंट्स थी। यहाँ पर कहा गया है कि वहाँ पर एक आई विटनेस था, छोटा बच्चा था, जिसने देखा कि वहाँ की जो हमारी जो माएँ थी, जो बहनें थी, उनको मार के नंगा रख के सड़कों पे रखा गया था। उसके फोटोज ये आप देख लें, जो उस वक्त न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग है, वो सब लिखी। हम किस तरह ये भूल सकते हैं कि हिंदुस्तान और डोगरा फोर्स ने मुसलमानों के साथ किस तरह किया। प्रोग्राम के आखिर में साबिक मेयर मोहम्मद रियाज भट्ट ने एक करारदाद पेश की जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। ये करारदाद है कि आज का अजलास हिंदुस्तान के बुज़दिल जालिम कानून की मजम्मत करते हुए, जिन्होंने 1947 को जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को जो पाकिस्तान से अलग करना चाहते थे, को एक मनसूबाबंदी के साथ राष्ट्रीय सेवक सिंह और सिखों के जत्थों से कत्ल आम करवाया। 2 लाख से जायद मैंने ये लफ्ज़ लिखा है, अगर आप इस पे मुत्तफिक हूँ तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा पे कत्ल आम हुआ। आज का अजलास हिंदुस्तान की जेलों में बंद कश्मीरी रहनुमा, जिनमें यासीन मलक, शबीर शाह, मसरत आलम, आसिया इंदिरा बी मोहतरमा, शेख अब्दुल रशीद, खालिद परवेज जो ह्यूमन राइट्स के हैं, और दिगर जो सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, और जो लोग हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों में जेलों में बंद हैं, जिनको मिलने कोई जा नहीं सकता, तो उन सब की हम ये उनसे मुतालबा करते हैं उन लोगों को रहा किया जाए। और अजलास कम्युनिटी से भी ये मुतालबा करता है, जो लूटन गिरदोनवा के लोग हैं, कि अपने आप को तहरीक आज़ादी से वाबस्ता करें ताकि आज़ादी का सूरज जल तुलू हो। आप इससे मुतफिक हैं मेरी करारदाद से? तकरीब के इख्तिताम पर शुहदा के एसाले सवाब और फ़लस्तीन, कश्मीर समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमाओ, कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमाओ। या अमीन शुहदाए कश्मीर जो 6 जून 1947 को शहीद हुए थे, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत आमीन उनके दर्जा बुलंद आमीन या अमीन कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमाओ।